Good morning class. My name is Himanshu and I will be taking your online classes for accountancy. Now this is the first video, so we will be discussing the marks distribution of our subject. Now the marks distribution is as follows. Theory 80 marks, project 20 marks, and the time allotted is standard 3 hours exam. There are two books, part A and part B. In part A, accounting for non-profit organizations, partnership firms and company will be dealt with. In these, there are three units. Unit 1, financial statement of a non-profit organization will carry 10 marks. In this, how non-profit organizations raise fund and do their accounting and final accounts will be seen. Unit 2, accounting for partnership firm. In this, the basic of partnership like change in the profit sharing ratios, retirement, death, admission of a partner and even dissolution of partnership firm will be dealt with 30 marks. Unit 3, accounting for companies. How companies raise fund and how companies forfeit shares of those who do not pay on time, etc. will be dealt in this. There is shares and debentures carrying 20 marks. The whole book is of 60 marks. Now, financial statement analysis is the second book. Unit 4, analysis of financial statement. Here, the financial statements that we have prepared in the first book will be analyzed in the second book. Now, in second book, there are many topics like ratio analysis, common size, cash flow, vertical analysis, statistical analysis, and various other analysis will be done for 12 marks. In Unit 5, cash flow statement, 8 marks. There are three types of flows, three activities from which cash is flown in business and out of business. It will be dealt in Unit 5, carrying 8 marks, total 20 marks. Now, 60 and 20, we have a total of 80 marks exam. Now the part C, project work. It is mandatory for each and every student to prepare a project, and project work includes project file 4 marks, written test 12 marks, VO voice 4 marks, and it will be total 20 marks. Now 80 and 20 totals 100 marks. Now this is just an introduction of what we will be doing the whole year. Now in this video we will be dealing about basic fundamental parts of partnership. This is chapter 1, accounting for partnership firm fundamentals. एक चीज आप सभी को ध्यान रखनी है कि जब हम पार्टनरशिप पूरी खत्म कर लेंगे, इसका मतलब हमने कहीं हद तक उस कानून को पढ़ लिया है जिसका नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम जो भी पढ़ेंगे ये अपने मन से बनाई हुई चीजें नहीं है, ये सब कुछ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है। तो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। कुछ जगह आपको सेक्शंस को भी कोट करना है, जहां जहां कोट करना है हम आपको बताएंगे। सबसे पहला हम लोग मीनिंग समझते हैं, पार्टनरशिप है क्या। आप लोगों ने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में से डील कर लिया है, पर ये आपको बताना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, देखिए मैंने कोट करा, मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही कोट करना है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप means partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all। सारे कर लो बिजनेस या तो एक साथ, और any of them acting for all। भाई या तो बिजनेस पे सारे के सारे पार्टनर्स रोज जाओ, पर अगर कुछ पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर्स हैं जो रोज बिजनेस नहीं भी जाना चाहते, मत जाओ। तो या तो सारे मिलके बिजनेस कर लो या कुछ लोग मिलके सबके लिए बिजनेस कर लो, या कोई एक ही जना अगर सबके लिए बिजनेस करना चाहता है तो आप कर लो, बस इसके अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। याद रखिए एक बंदा अपने आप में कभी अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पे पार्टनरशिप तो कर नहीं सकता, मिनिमम 2 बंदे चाहिए और मैक्सिमम जाएंगे हमारे 50।
ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो इसके बारे में, और इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा इस पे कि इंडिविजुअली इन लोगों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है पार्टनर्स, और इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, फर्म। कलेक्टिवली इन्हें क्या कहा जाता है, फर्म। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, कुछ भी आ जाए आंसर सेम। सबसे पहला, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब काम करें तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कोई बच्चा गेस भी नहीं कर सकता कि पार्टनरशिप एक्ट में ये बात लिखी ही नहीं हुई कि भाई कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट ने 2013 के अंदर ये बात बताई कि इसकी लिमिट कितनी होगी, 50। ये एसोसिएशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कल पिक्चर देखने चलोगे और आपने कहा हाँ भाई पिक्चर देखने चलेंगे, तो ये जस्ट एक एग्रीमेंट है। जब ये साइन हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है स्टैम्प पेपर्स के ऊपर। तो जो एक रिटन डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव है एक ओरल एग्रीमेंट से। तो यही मैं आपको ये बात समझाऊंगा दैट पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। हम पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हम साथ बिजनेस करेंगे, और एग्रीमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, रिटन और ओरल। रिटन, अगर रिटन बना दिया आपने एग्रीमेंट तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाएगा, और अगर आपने ओरल बनाया तो वो पार्टनरशिप डीड तो नहीं कहलाएगा, उसे आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट जरूर कह सकते हैं। पर कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कोई डिस्प्यूट हो गया तो लीगली हम लोग प्रूफ कभी कभी नहीं भी कर पाते क्योंकि सब कुछ तो ओरली था। तो समटाइम्स not legally enforceable in court of law. Now third one is business. अब पार्टनरशिप हम लोग सिर्फ एक लीगल बिजनेस जो रोज होता है उसके लिए कर सकते हैं। पार्टनरशिप must be carrying on some lawful business on reoccurring basis and to earn profit. प्रॉफिट कमाने के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए पार्टनरशिप नहीं होती। अगर सोशल सर्विस करने के लिए आप लोग साथ आ रहे हो तो उसे हम एनपीओ कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नाउ पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इन अ profit sharing ratio which is known as old profit sharing ratio, and when a new partner is admitted it is known as new profit sharing ratio. There are many type of ratios that we will be discussing. For the time being, sharing of profits does not only means that you are sharing profits only. Losses will also be shared in the same proportion. Losses को भी equally बांटा जाएगा। 10,000 रुपए का अगर लॉस होता है, दो पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो 1:1 का है, तो प्रॉफिट अगर वो 5-5 बांटते हैं तो लॉस भी वो 5-5 ही बांटेंगे। तो ये चीज इसमें समझाई गई है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आल्सो मींस शेयरिंग ऑफ लॉसेस एज वेल। बट बहुत इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर द लॉसेस आल्सो। जरूरी नहीं है सारे पार्टनर्स लॉसेस को भी शेयर करेंगे। एग्जांपल, माइनर पार्टनर कम फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर लॉसेस। हालांकि माइनर पार्टनर्स एंटर होना भी एक मुश्किल चीज है, पर ठीक है, अगर वो हो भी जाता तो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए एंटर होगा। नाउ द लास्ट वन इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे के सारे मिलके बिजनेस कर ले, या कोई एक बंदा सारी फर्म के पार्टनर्स का एजेंट बनके उनके लिए काम कर ले। पर यहीं पे एक ड्रॉबैक आ जाता है, अगर उस एक पार्टनर ने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उसकी वजह से बाकी सारे पार्टनर्स को भी उस चीज को भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एक पार्टनर को एजेंट बना के रख रखा है कि भाई तू सारा पार्टनरशिप का काम संभाल। इट मीन्स दैट वन पार्टनर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। ये पूरी फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उनका एजेंट बन के काम करेगा, एंड ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड, वो बाध्य हैं by the act of the partner who is acting as an agent of a partnership firm.